Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। We welcome you all in the name of Jesus Christ. हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। As we are here to study God's word, जैसे हम यहाँ मौजूद हुए हैं परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने, we need grace. तो हमें अनुग्रह की जरूरत We है need faith. और हमें विश्वास की जरूरत है। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते We are हैं। sitting in your presence. आपकी उपस्थिति में हम बैठे हैं। Father, through Jesus Christ, we are in your presence. पिता, यीशु मसीह के द्वारा आपकी उपस्थिति में हम आए हैं We are here to listen your word. और आपका वचन सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। Come, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हो, We believe in you. हम आप में विश्वास करते हैं। Talk to us. हमारे साथ बात करो। Father, give us grace पिता, हमें अनुग्रह दो to understand Jesus Christ's words. यीशु मसीह के वचनों को समझने के लिए। Open our ears. हमारे कान खोलो। Yes, open our eyes. हमारी आंखें खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। We want to listen you. हम आपको सुनना चाहते We हैं। want to understand you. हम आपको समझना चाहते हैं। We want to receive your truth. आपका सत्य हम पाना चाहते हैं। We humble ourselves. हम अपने आप को नम्र करते हैं। Thank you for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। Through him we are been forgiven. यीशु के द्वारा हमें माफी दी गई है। Thank you Jesus Christ for shedding your blood. यीशु मसीह आपका लहू बहाने के लिए आपका धन्यवाद। We love you Jesus Christ. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते You हैं। are alive. आप जीवित हो And thank you for Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। Bless us. हमें आशीष दो। In Jesus' name we pray, Father. पिता, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात। We are studying Jesus Christ's spoken parables. यीशु मसीह ने जो दृष्टांत बोले उनका हम अभ्यास कर रहे And हैं। this is 46th parable. और यह 46वां दृष्टांत है। From Matthew 18 chapter 1 to 11 verse we are going to read and study. मत्ती का सुसमाचार 18वें अध्याय से 1 से 11 वचन हम पढ़ने और अभ्यास करने जा रहे हैं। Your disciple they asked Jesus Christ who is greatest and who is greater in the kingdom of heaven. यहाँ पर चेलों ने यीशु के पास आकर पूछा कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। And so they were discussing who is greater among us. तो वे बातचीत कर रहे थे कि हम सबके बीच में सबसे बड़ा कौन है। Yes, and Jesus Christ answered. और हाँ, यीशु मसीह ने जवाब दिया। He just called one little boy. यीशु मसीह ने एक छोटे बालक को बुलाया And he came and stood among them. और वह बालक आया और सबके बीच में खड़ा रहा। Then Jesus answered these disciples. फिर यीशु ने यह चेलों से पूछा, I tell all of you with certainty or truly I say to you, यीशु ने सब चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, unless you change and become not like these little children, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, you will never get into kingdom of heaven. तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। More he said, और यीशु ने कहा, therefore whosoever humble himself as this little child जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, नम्र is बनाएगा, the greatest in the kingdom of heaven. वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। And whosoever receive this a little child like this और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, in my name, if anyone receive whom I have called this little one, मेरे नाम में जो कोई इस बालक को जिसको मैंने बुलाया है उसको ग्रहण करेगा, he is the greater, he is the greatest. वह सबसे बड़ा है। And if anyone cause one of this little one who believe in me to sin, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको ठोकर खिलाए, it would be better for him if a large millstone be hung around his neck and he be drawn at the bottom of the sea.
उसके लिए भला millstone, sorry. उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। So here Jesus said, this little child, if anyone put him to sin or drew him to sin or lead him to sin, तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि यह छोटे बालक को यदि कोई पाप करवाए, पाप करने को ले जाए या ठोकर खिलाए, then woe to him. तो उसे अफसोस। It's better for him that he be thrown in the bottom of sea. उसके लिए भला यह होता कि उसे समुद्र के पानी में फेंक दिया जाए। Verse 7. 7वां वचन, Woe to the world for the cause of sin. ठोकरों के कारण संसार पर हाय। This stumbling block must come, ठोकरों का लगना तो अवश्य है, but woe to that man through whom this hindrance or comes. पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। Verse 8. 8वां If वचन, your hand or your feet cause you to sin, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे पाप करवा ठोकर खिलाए, पाप कराए, cut it off and throw it away. तो काट कर उसे फेंक दे। It is better for you to enter in life crippled or lame than to have both hands, both feet, you are be thrown in eternal fire. टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। And if your eye cause you to sin, और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए, pluck it out तो उसे निकाल कर फेंक दे। and throw it away. तो उसे निकाल कर फेंक दे। For it is better that you be blind, enter into the eternal life, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है, than to have both eye and be thrown in the hell of fire. कि दो आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। And verse 10. और 10वां वचन, See that you despise not one of this little one. Okay, it's it's okay. 10 verse. Okay, yes. It's in Hindi it's 11. 11वां वचन हिंदी में है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। Despite not one of this little one. कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। And Jesus said, for I said to you that their angels in heaven always see the face of my Father who is in heaven. और यीशु ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। For I, Son of Man, is come to save that which was lost. क्योंकि मैं मनुष्य का पुत्र उन्हें बचाने आया हूँ जो खोए हुए हैं। Amen. आमेन। So from this first verse to 12 or 11 verse, we want to study. तो यह पहले वचन से 11 और 12वें वचन तक हम अभ्यास करना चाहते हैं। Disciples, they were quarreling and murmuring among themselves, saying, who is the greatest among us? चेले अपने आप में लड़ रहे थे और कुड़कुड़ाहट कर रहे थे, यह कहकर कि हम सब में बड़ा कौन है। And they came and asked Jesus Christ, who is greater, who will be greater in the kingdom of heaven? और उन्होंने आकर यीशु मसीह से पूछा कि बड़ा कौन है और स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा। And then Jesus taught them who is the greatest. बाद में यीशु ने उनको सिखाया कि सबसे बड़ा कौन है। To teach them lesson, Jesus Christ called a son or little boy and make him stood among them. उनको पाठ सिखाने के लिए यीशु मसीह ने एक छोटे बालक को बुलाया और उनके बीच में खड़ा किया। And then said, और फिर कहा, you have to receive him in my name. कि तुम्हें इस बालक का स्वीकार करना है मेरे नाम में। You have to receive him because I have called him and put him in midst of you. तुम्हें उससे स्वीकार करना है क्योंकि मैंने इस बालक को बुलाया और तुम्हारे बीच में रखा You है। should not despise him whom I have called and make him stood. और जिसे मैंने बुलाया और बीच में खड़ा रखा है उसे तुम्हें तुच्छ नहीं जानना है। More you should not cause him to sin.
और आगे उसे तुम्हें पाप नहीं करवाना है। And you have to receive him as your boss or as the greatest. और तुम्हें इस बालक को अपना मालिक या सबसे बड़ा ऐसा मानकर स्वीकार करना है। For if you don't change and humble yourself like this little boy, क्योंकि तुम अपने आप को ना बदलो और इस बालक के समान अपने आप को नम्र ना करो, you cannot be the greatest. तो आप बड़े नहीं बन सकते। In the second verse, Jesus said, दूसरे वचन में यीशु ने कहा, I certainly tell you, verse 3, तीसरा वचन, कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, unless you change and become like, you become not like these little children, you will never enter into the kingdom of heaven. यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। So, who is greatest among us in the kingdom of heaven? तो स्वर्ग के राज्य में हम सब में सबसे बड़ा कौन है? But Jesus taught them that unless you don't be a little like these little children, you will never enter. लेकिन यीशु ने उन्हें सिखाया कि यह छोटे बालक के समान जब तक तुम ना बनो तब तक प्रवेश नहीं कर पाओगे। Who is greatest is another question. और सबसे बड़ा कौन है यह तो एक दूसरा अलग सवाल है। But the main thing, if you want to enter into kingdom of heaven, लेकिन मुख्य बात कि यदि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, you have to change yourself and be like this little children. तो तुम्हें अपने आप को बदलना है और यह छोटे बालक के समान बनना So है। here Jesus taught two things. तो यहाँ पर यीशु ने दो बातें सिखाई। To enter into kingdom of heaven, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के you लिए have to be like little children. तुम्हें छोटे बालक के समान बनना है। Second thing he taught, दूसरी बात यीशु ने सिखाई, among all these little children ये सारे छोटे बच्चों में who become like these little children, जो ये छोटे बालक के समान बनते हैं, they all are gathered in kingdom of heaven. वे सब लोग स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा होते हैं। But whom I choose and I call and make him stood among you, he is the greatest. लेकिन जिसे मैं पसंद करूं और बुलाऊं और तुम्हारे बीच में खड़ा रखूं, वही सबसे बड़ा है। So in this Jesus teaching, तो यीशु के इस शिक्षा में he used more time word little children. उसने छोटे बालक यह शब्द को बहुत बार उपयोग किया। And this disciple heard it, who is greatest, and Jesus said, little children. और चेलों ने सुना कि कौन बड़ा है और यीशु मसीह ने कहा छोटे बच्चे, छोटा बालक। So here we can see 5 times Jesus used little children. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु ने 5 बार इस शब्द का प्रयोग किया कि छोटा बालक, छोटे बालक। They were arguing who is greatest among us. वे सवाल कर रहे थे कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। Apostle, they were discussing who is the greatest. प्रेरित लोग ये चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है। And Jesus called a son, a child. और यीशु ने हमें संतान कहा, बालक का। He called a child and make him stood. और यीशु ने एक बालक को बुलाया और बीच में खड़ा रखा। Without argument he came. और वह बालक कोई सवाल किए बिना आ गया and stood. और खड़ा रहा। And Jesus set him up in the front of the disciple. और यीशु ने चेलों के सामने उसे खड़ा किया। Lord himself called. प्रभु ने खुद उसे बुलाया। And Lord himself make him set in midst of them. और प्रभु ने खुद उस बालक को उनके बीच में खड़ा रखा। And said, और कहा, if you don't change yourself like him, यदि तुम अपने आप को इस बालक के समान ना बदलो, you cannot enter into kingdom of heaven. तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। So a child was called. तो बालक को बुलाया गया। Without argument, without question, without quarrel and without doubt, this boys stand and obeyed Jesus. और कोई संदेह या सवाल या
कोई संदेह या सवाल के बिना या कोई सामने झगड़ा या गुस्सा किए बिना यह बालक बच्चा आ गया और खड़ा रहा। Without doubt, he came. बिना संदेह वह आया। Many times we have to call children, come, and after 2-3 voice they listen. बहुत बार हमें बच्चों को बुलाना पड़ता है कि आओ आओ, और 3-4 बार जब बुलाते हैं तो वे सुनते हैं। Just coming on the way, I found that people they don't listen. जब आते समय मुझे पता चला कि लोग सुनते नहीं हैं। They will listen when you peep the horn 2 times. जब आप 2 बार हॉर्न बजाओगे गाड़ी का तब वे लोग सुनेंगे। When you speak 2 times, they will listen. और जब आप 2 बार बोलोगे तो वे सुनेंगे। Because we are spiritual people. क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। And so we have to shout with flesh. इसीलिए हमें ये मास या सांसारिक लोगों के सामने चिल्लाना पड़ता है। Don't be like little children, छोटे बच्चों के समान ना बनो, but be like that child whom Lord called and make him stood. लेकिन प्रभु ने जो बालक को बुलाया और खड़ा रखा उस बच्चे के समान बनो। All children are not angels. सारे बच्चे स्वर्गदूत नहीं हैं। These little angels, when they grew up, we know them that they are devil or they are children. Right now, they may be angel, but more when they will grow up, we will know them. They are angelos. यह छोटे बच्चे जो हमें स्वर्गदूत लगते हैं, जब वे बड़े हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वे स्वर्गदूत है या शैतान है। Many times the people call them little or little boy or tinky man. बहुत बार हम सुनते हैं कि लोग दूसरे लोगों को नाम देते हैं कि छोटा बालक या तो छोटू या टिंकू ऐसा नाम देते हैं। But when they become great, we feel ashamed. लेकिन जब वे बड़े बन जाते हैं तो हमें शर्म लगती है फिर। So Jesus didn't talk about little children, but he talked about the boy whom Jesus called, and he without doubt he stood. तो यीशु ने छोटे बच्चों के बारे में बात नहीं की, लेकिन जिस बालक को बुलाया और बीच में खड़ा रखा था उसके बारे में बात की। 3 things about this little child, why he was greatest. यह छोटे बालक के बारे में 3 बातें ऐसी कि वह बड़ा क्यों था। Not because he was little child, वह छोटा बच्चा था इसीलिए नहीं, but without argument he obeyed Jesus Christ. लेकिन सवाल जवाब किए बिना उसने यीशु की आज्ञा मानी। Second thing, दूसरी बात, Jesus Christ himself chose him, called him. यीशु मसीह ने खुद उसे चुना और बुलाया। There were many little children, but Jesus didn't say be like this all little children. वहाँ पर बहुत सारे छोटे बालक थे, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि ये सारे बच्चों के समान बनो। But he said be like this. लेकिन यीशु ने कहा कि इस बच्चे के समान बनो। If Jesus would call one boy and if he wouldn't come, Jesus wouldn't give example of that boy. यदि यीशु बच्चे को बुलाते और वह नहीं आता तो उस बालक का उदाहरण यीशु नहीं देते। If Jesus would call one boy and if he wouldn't say, if he would say, I don't want to come, यदि यीशु एक बालक को बुलाए और वह कहे कि मैं नहीं आऊंगा, then Jesus would say, you boy come. तो यीशु दूसरे को कहेंगे कि बेटा तू आ जा। And if that even feel shame and say no, और वह बालक को भी यदि शर्म लगे और वह भी मना करे, then Jesus would say, you little one, you come. तो यीशु तीसरे बच्चे को कहेंगे कि तू छोटा बच्चा तू आ जा। And then that would come. और फिर वह बालक आता। And then Jesus would say, be like this little child. उसके बाद यीशु कहते कि यह छोटे बालक के समान बनो। To give example to that apostles, वह प्रेरितों को उदाहरण देने के लिए Jesus called us child. Jesus called that child and he stood and he obeyed. यीशु ने उस बालक को बुलाया और उसने आज्ञा मानी और खड़ा रहा। And also Jesus make him set up in front of the disciples. और यीशु ने उस बालक को चेलों के सामने खड़ा भी किया। And he stood there. और वह वहाँ खड़ा रहा। He came. जो आया, he came, वह आया, he stood, वह खड़ा रहा, he obeyed, उसने आज्ञा मानी। Amen. Amen.
So without doubt, straightway obeyed Lord voice. तो बिना संदेह तुरंत ही प्रभु के आवाज को, आज्ञा को उसने मान लिया। So those are greatest who at one voice obey Lord voice. तो एक ही आवाज में प्रभु की बात जो मान लेते हैं वे लोग सबसे बड़े होते हैं। Why Moses was greatest, you know? मूसा सबसे महान क्यों था आपको पता है? Because there was no exaltation or no boasting and no proud and pride in him. क्योंकि मूसा के अंदर कोई अहम की बात या अभिमान या अपने आप को ऊंचा उठाने की बात नहीं थी। He never exalted himself. उसने अपने आप को ऊंचा कभी नहीं किया। Even David said, "Who am I and what was my family?" दाऊद ने भी कहा कि मैं कौन और मेरा परिवार, मेरे परिवार की क्या हैसियत। Even Elijah even said. एलिया ने भी कहा, Even Isaiah said. यशाया ने भी कहा, Even Job said. अय्यूब ने भी कहा, I am a wound. I am a kiddo. Worm. Yes. कि मैं कीड़ा हूँ। So these all God's servant, they never exalt themselves. तो ये सारे परमेश्वर के सेवकों ने अपने आप को कभी ऊंचा नहीं उठाया। They listened at one voice. उन्होंने एक ही आवाज में सुना And they were meek people. और वे नम्र लोग थे। Here's 7 things we are going to study and then I'm going to finish. यहाँ पर 7 बातें हम पढ़ने जा रहे हैं और फिर मैं पूरा करूंगा। 7 questions arise. 7 सवाल उठते हैं। Who is the greatest in the kingdom of heaven? स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? Not little children. छोटे बच्चे नहीं। But to change himself like the one who is the obedient child. जो आज्ञा पालन करने वाला बच्चा है उसके समान जो अपने आप को बदल देता है। Bring down pride. और अभिमान को छोड़ देता है। Be humble. नम्र बनता है। Change himself like that child. और जो बालक को बुलाया है उस बालक के समान अपने आप को बदलता है। He can enter in kingdom of heaven. वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। But he is not the greatest. लेकिन वह सबसे बड़ा नहीं है। But the greatest is the one whom Lord called and he come. लेकिन सबसे बड़ा तो वही है जिसे प्रभु बुलाता है And he come. और वह आता है। And also as Lord make him stand and he stand. और प्रभु जैसे उसे खड़ा रखता है वैसे ही वह खड़ा रहता है। So Lord taught that unless you don't change, you who are asking who is greatest, unless you don't change your even question, तो तुम लोग जो सवाल पूछ रहे हो कि सबसे बड़ा कौन है, जब तक तुम अपना यह सवाल ना बदलो and don't become like little children, और यह छोटे बालकों के समान ना बनो, and don't even and not and verse 4, whosoever therefore shall humble himself like these little children, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा is the same greatest in the kingdom of heaven. वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। So one have to accept the greatest. तो एक को आकर जो बड़ा है उसका स्वीकार करना है। Be like the one who is obedient. और जो आज्ञा पालन करता है उसके समान बनना है। And not to mock at him and not to tease him. और उसकी मजाक नहीं करनी है, मस्करी नहीं करनी है। And not to despise him. और उसे तुच्छ नहीं जानना है। And not to be hindrance to him. और उसके लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। Then only we can be stay forever in the kingdom of heaven. तो ही हम परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में हमेशा रह सकते हैं। So the question was, who are the greatest in kingdom? तो सवाल था कि राज्य में सबसे बड़ा कौन है And why they are greatest in the kingdom? और वे राज्य में सबसे बड़े क्यों हैं? Verse 10. 10वां वचन, Why they are greatest? वे सबसे बड़े क्यों हैं? Why in the sight of Lord that is the greatest among in that kingdom of God heaven? प्रभु की नजर में स्वर्ग के राज्य में ये सबसे बड़ा क्यों है? Verse 10. 10वां Lord वचन, said,
प्रभु ने कहा, the angel see that or take care that that you do not look down at any of these little one. See that you do not look down on any of these little ones. देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, For I tell you that there are angels, that they are having angels which are in heaven. They always see the face of my Father in heaven. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। So those who are little in sight of man, they are greatest in sight of angels. तो जो मनुष्य की दृष्टि में सबसे छोटे हैं, वे स्वर्गदूतों की दृष्टि में सबसे बड़े हैं। And these little, whom you are thinking little, they are having a big angels. और तुम यह छोटे के बारे में सोचते हो कि यह छोटे हैं, उनके पास स्वर्गदूत है। They are special people. वे मुख्य विशिष्ट लोग हैं। Even angel take care of this little one. और स्वर्गदूत भी यह छोटे बच्चों का, यह छोटे व्यक्ति की संभाल रखते हैं। Even the greatest angel, they respect this little one. और सबसे बड़े और महान दूत भी यह छोटे लोगों का आदर रखते हैं। 1 Peter 3 and verse 4 says, पहला पत्रस 3 अध्याय 4 वचन कहता है, here Peter got a revelation that a meek spirit which is rich in the sight of God. यहाँ पर पत्रस को यह ज्ञान मिला कि नम्रता और मन की दीनता परमेश्वर की दृष्टि में बड़ी मूल्यवान है। So what is rich in the sight of God? तो परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य किसका है? What is precious? What is valuable? क्या मूल्यवान है, क्या कीमती है? Those who are meek in spirit. जो मन में दीन है, नम्र है। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So why they are so great in the sight of God? तो परमेश्वर की दृष्टि में वे इतने महान क्यों हैं? Why they are so valuable in the sight of angels? और स्वर्गदूतों की दृष्टि में वे इतने मूल्यवान क्यों हैं? Because they are meek in spirit. क्योंकि वे आत्मा में नम्र है, मन में नम्र है। I got one link and someone shared that link. मुझे एक लिंक मिला, किसी ने भेजा। Watch that video. Watch this video. कि यह वीडियो क्या है? You just go and watch that video and you can comment on that video. कि आप जाकर वह वीडियो देखो और वहाँ पर आप कमेंट देना। And even I comment that in that video. और उस वीडियो में मैंने कमेंट भी दिया। And I said music and everything is just okay, not too fine. और मैंने कहा कि जो संगीत है और सब कुछ जो है वह ठीक ठाक है, इतना अच्छा नहीं। But all were appreciating and praising. Very good, wonderful, very good, wonderful. लेकिन सब लोग कमेंट में महिमा प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा है। And I said we Christian people need more to know about music. और मैंने कहा कि हम मसीही लोगों को संगीत के बारे में ज़्यादा ज्ञान लेना चाहिए। We have to learn about breathing and vocal exercise. हमें सांस लेने की और बोलने की जो कसरत होती है उसके बारे में सीखना है। So and even I said that if you don't like my comment, you can delete it. और मैंने यह भी कहा यदि तुम्हें मेरी कमेंट पसंद ना आए तो उसे निकाल देना। When we speak right thing, the people heard that. जब हम सच बोलते हैं तो लोगों को दुख लगता है। People love to listen good and nice words. लोगों को अच्छा और बेहतर सुनना पसंद है। And when we do such comment, they say you are not meek in spirit. और जब इस तरह की कमेंट हम देते हैं तो वे फिर कहते हैं कि तुम नम्र व्यक्ति नहीं हो आत्मा में। But if they ask our judgment or our views, they will be disappointed. If they are asking about our views. लेकिन यदि वे खुद हमें पूछे कि आपका क्या कहना है इसके बारे में और फिर हम बताएंगे तो वे नाखुश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। So it is hard to give any comment.
तो कोई बात के बारे में कमेंट देना भी कठिन बात है। But if they want to listen the truth, then we are there. लेकिन यदि वे सत्य सुनना चाहते हैं तो फिर हम तैयार हैं उनके साथ कहने के We लिए। don't hate anyone. हम किसी से नफरत नहीं करते, But we want everyone be perfect, be in sight of God. लेकिन हम चाहते हैं कि हर कोई परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध बन We जाए। are not perfect, हम संपूर्ण सिद्ध नहीं, but we can see what is perfection. लेकिन संपूर्णता क्या है हम देख सकते हैं। And even if we ignore this, then we are liar. और इस बात को यदि हम अनदेखा कर दे तो फिर हम झूठे हैं। Third thing in this story we learn, यह कहानी में तीसरी बात हम जो सीखते हैं, come back to our parables. हमारे दृष्टांत में आओ वापस आए। Why not to hate or despise those God greatest man or greatest child? परमेश्वर के वह बड़े लोगों को या बड़े बुलाए हुए बड़े बच्चों को हमें क्यों नफरत नहीं करनी है या तुच्छ नहीं जानना है? For they are having mixed spirit. क्योंकि उनमें नम्र आत्मा है। In the sight of God, these are having great value. They are of great value. परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी कीमत है, And so we should not despise them. इसीलिए हमें उनको तुच्छ नहीं मानना है। And what is this punishment of milestone hung around the neck? और उनके गले में चक्की का पाट बांधकर उनको पानी में डुबो दिया जाए, यह कौन सी बात है? Why such punishment your Lord Jesus Christ said? प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह की सजा के बारे में क्यों कहा? Yes, verse 8. 8वां वचन। Yes. Verse 6. 6वां वचन। Why Jesus said this punishment is the best for those who despise the little one? जो छोटे बालकों को धिक्कार करते हैं उनके लिए यह सजा सबसे अच्छी है, ऐसा यीशु ने क्यों कहा? For one man, if he is punished like this way, कि एक व्यक्ति को इस तरह से सजा मिले, he will never come out from the sea. तो फिर वह समुद्र के पानी में से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। When a stone is tied up to body and is thrown into the sea bottom, यदि पत्थर हमारे शरीर के साथ कोई बड़ा पत्थर बांध दिया जाए और समुद्र की गहराई में फेंक दिया जाए, it will never come up. तो फिर वह नीचे जाकर कभी ऊपर नहीं आ पाएगा। So same way, never he will think that I have to exalt myself. तो उसी तरह फिर कभी वह सोचेगा भी नहीं कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, ऊपर हूँ, ऐसा वह सोचेगा भी And he नहीं। will never despise a little one. और जो छोटे हैं उनका वह फिर धिक्कार भी नहीं करेगा। Never he will think even to exalt before the chosen of God. और परमेश्वर के पसंद किए हुए के सामने वह अपने आप को कभी ऊंचा नहीं उठाएगा। If one boy is slapped for his doing wrong, other all will be we will see them quiet. यदि एक बच्चा गलत करता है और उसे चाटा लगता है और दूसरे बच्चे देखते हैं तो दूसरे सब बच्चे शांत हो जाएंगे। So your Lord said, तो यहाँ पर प्रभु ने कहा, a milestone hung around his neck and be thrown in the sea bottom, that is good for him. चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और गहरे समुद्र में उसे डुबाया जाता, वह बेहतर है उसके लिए। It would be better, वह उसके लिए बेहतर है, for he is causing a little one to do sin. क्योंकि जो छोटा है उसको वह पाप करवाता है, ठोकर खिलाता है। Many times we mock at a person and they are hurt. बहुत बार हम किसी को देखकर उनकी मजाक उड़ाते हैं और उनको बहुत दुख लगता है। We don't know that those are for them. Lord Jesus Christ has shed his blood. हमें नहीं पता कि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है। So Jesus said it's better for him to be thrown in the sea bottom. तो यीशु ने कहा कि उसके लिए यह बेहतर होगा कि उसे समुद्र के नीचे डुबा दिया जाए। Your fifth question arises. यहाँ पर पांचवा सवाल उठता है, What is this cutting of hand and cutting of feet and
plucking out eyes. कि यह हाथ का काट डालना या पाँव का काटना या आँख को निकाल देना, ये सब क्या है? For as Jesus said, क्योंकि जैसे यीशु ने कहा, verse 9, 8 and 9, 8 और 9 वचन, if your hand or foot cause you to sin, cut it off and throw it away. यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे, For it is better that you enter in life crippled or lame than to having both hand and both feet thrown into eternal fire. टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। And if your eyes cause you to sin, और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए pluck it out, तो उसे निकाल कर फेंक throw it दे, away. उसे फेंक दे। It is better that you enter in the kingdom of heaven or in life with one eye. It's okay. कि स्वर्ग के राज्य में या जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए काना होकर जीवन में प्रवेश करना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए भला है। So if you have one eye, it's okay. You can enter in kingdom of heaven. तो यदि आपकी एक आंख है तो चलेगा, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर If सकते you हो। have one hand, it's okay. You can enter in heaven. और यदि आपका एक ही हाथ है तो भी चलेगा, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते If you हो। are not having one feet, it's okay. You can enter in kingdom of और heaven. यदि आपका एक पाँव नहीं है तो भी चलेगा, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते There are हो। people who are having two hands, but they are not helping anyone. ऐसे भी लोग हैं जिनके 2 हाथ है लेकिन किसी को मदद नहीं करते। There are people are having 2 feet, but they don't know how to drive. और दोनों पाँव लोगों के होते हैं लेकिन वे जानते नहीं कि कैसे ड्राइविंग करना है। People have eyes. लोगों की आंखें होती है, Still they met accident. Why? I don't understand. फिर भी वे रोड पर अकस्मात कर देते हैं। ऐसा क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। Just Jesus was not talking about eyes and hand and feet. यहाँ पर यीशु मसीह आंखें या हाथ और पाँव के बारे में बात नहीं कर रहे थे, But he was talking about the people. लेकिन यीशु मसीह लोगों के बारे में बात कर रहे थे। Those who are dear, near people, they are called hands. You're helping people. जो आपके प्रिय और सबसे करीबी रहने वाले लोगों को हाथ कहा जाता है, जो आपको मदद करते हैं। And the legs, they are who are with you all the time, walking with you. और पाँव तो वह है कि जो लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं और आपके साथ चलते रहते Like a हैं, friend. मित्र के समान। And eyes are like your leader, your teacher, pastor. और जो आंखें हैं वे तो आपके जो आगेवान है या पासबान है उनके समान है, Those who guide you. जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, चलाते But हैं। the one who guide you, make him fall. If he lead you to sin, then you have to cut the relation with your pastor and teacher. लेकिन जो आपको मार्गदर्शन देने वाला पासबान है या शिक्षक है, वही आपको पाप करवाए तो आपको उसके साथ संबंध काट डालना है। And if your friend lead you to sin, और यदि तुम्हारा मित्र तुम्हें पाप करवाए cut your feet. तो वह आपके पाँव को काट दो। And if it is someone dear is causing you to sin, और आपका कोई प्रिय आपको पाप करने के लिए ठोकर खिलाए, the one who help you and causing you to sin, जो आपको मदद करे और ऐसा करके आपको पाप करवाए, cut your hand. तो वह हाथ को आप काट दो। Cut your friend. आपके मित्र को काट दो, Cut your leader. आपके आगेवान को काट दो, Cut your companion. आपके जोड़ीदार को काट दो। So, without having friends, you can enter in heaven. तो मित्र ना होने के बाद भी आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। Without leader, you can enter in heaven. और आगेवान के बिना आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। So cut the relation who are making you to sin or leading you to sin. तो जो आपसे पाप करवाता है, ठोकर खिलाता है, ऐसे लोगों के साथ संबंध काट डालो। For people, we are excited, and by people we are been angered. We face it is temptation time. क्योंकि लोगों के द्वारा ही हम उत्सुक भी हो जाते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं, और वही लोगों के द्वारा हम क्रोध भी, गुस्से में भी आ जाते हैं, गिर भी जाते हैं। People make us cause us to sin. लोग हमसे पाप करवाते हैं। So it's better to cut the relationship with the people.
तो लोगों के ऐसे लोगों के साथ संबंध काट डालना यह बेहतर है। Amen. आमेन। Sixth question arise, why Lord said the offenses or snare or trap, stumbling block are necessary? छठा सवाल उठता है, प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि ठोकर आती है। ठोकर का लगना तो अवश्य है, प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। दुख पहुंचना या जाल में फंसना या ठोकर खाना, ये सारी बातें अवश्य है, ऐसा क्यों कहा। For the world didn't like Jesus Christ. क्योंकि दुनिया वालों ने यीशु मसीह को पसंद नहीं किया। World hate Jesus Christ. संसार यीशु मसीह से नफरत करता है। And the world hate whom Jesus Christ called and chose. और यीशु मसीह जिनको बुलाता है, पसंद करता है, ऐसे लोगों से भी संसार नफरत करता है। They don't like when Jesus Christ call another disciple यीशु to मसीह make call another disciple or appoint another disciple upon disciple. यीशु मसीह जब दूसरे कोई चेले को एक दूसरे लोगों के ऊपर या दूसरे चेले के ऊपर नियुक्त करता है तो संसार वालों को पसंद नहीं आता है। People don't like लोगों को अच्छा नहीं लगता। someone call himself as leader. कोई किसी अपने आप को आगेवान कहे। People don't like anyone who lead us. कोई हमारी अगुवाई करे, हमें चलाए, ऐसा लोगों को अच्छा नहीं लगता। Jesus Christ was Lord. यीशु मसीह प्रभु थे। He was teaching the people. वह लोगों को शिक्षा दे रहे थे। People didn't like Jesus Christ teaching. लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा लोगों को अच्छी नहीं लगी। There is one Muslim debatean. एक मुस्लिम सवाल जवाब करने वाला, चर्चा करने वाला व्यक्ति He है। said, I am more Christian than the so-called Christian people. उसने कहा कि नाम के ईसाई लोग हैं, उनसे बढ़कर मैं बेहतर ईसाई हूँ। But he is not Christian. लेकिन वह Still he is not Christian. फिर भी वह मसीही ईसाई नहीं है। He loved Jesus Christ teaching. वह यीशु मसीह के बोध को पसंद करता है। But he never teach Jesus Christ lessons. लेकिन यीशु मसीह के पाठ या बोध वह कभी सिखाता नहीं। The world hate Jesus Christ and Jesus Christ disciples. दुनिया वाले और संसार यीशु मसीह से और यीशु मसीह के चेलों को नफरत करते हैं। John 15:23 says, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 23वां वचन कहता है, Whosoever hate me, he hates even my Father. जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। John 17:14. यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 14वां वचन। Jesus said, I gave promises to my disciple. I am giving you promises, words to you. यीशु ने कहा कि मेरे चेलों मैं तुम्हें वचन देता हूँ And the world has hated you. और संसार ने तुमसे बैर रखा है। Because they are not of my disciple are not of the world. I have chosen them, so the world hate them. मेरे चेलों को मैंने चुना है और वे इस संसार के नहीं है, इसीलिए संसार ने उनसे नफरत की। So though the world hate Jesus called chosen people. तो यीशु के बुलाए हुए, पसंद किए हुए लोगों को संसार नफरत करता है। And so Jesus said in Matthew 18:7, woe to the world because of offenses. इसलिए यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 7वां वचन कि जिसके द्वारा ठोकर लगती है उस पर हाय। Woe to the world because of offenses. ठोकरों के कारण इस संसार पर हाय। For the world bring offenses. क्योंकि संसार जो है वह ठोकर खिलाता है। For it must need to be that offenses come. क्योंकि ठोकरों का लगना तो अवश्य है ही। But woe to that man by whom the offenses or stumbling block comes. लेकिन उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा ठोकर लगती है। The world hate good things. The world hate Christ. The world hate Christian people. संसार वाले अच्छी बातों से नफरत करते हैं, संसार वाले मसीहा से नफरत करते हैं, संसार वाले ईसाई लोगों से नफरत करते They हैं। don't want God. They don't want God chosen.
वे परमेश्वर को नहीं चाहते और परमेश्वर के पसंद किए हुए को नहीं चाहते। 2 Thessalonians 2:16 says, दूसरा थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय 16वां वचन Paul कहता है, says the people hate us and they don't want that we go and preach to the people and save them. पौलुस कहते हैं कि लोग हमसे नफरत करते हैं और वे नहीं चाहते कि हम लोगों तक पहुंचे और उनको प्रचार करके बचाए। So offenses it need to come. तो ठोकरें आना तो अवश्य है। So if you are chosen, offenses must come. तो यदि आप पसंद किए हुए हो तो ठोकरें आएगी ही, आनी ही चाहिए। Seventh question. 7वां सवाल, Why angels they watch this little one only? स्वर्गदूत यह छोटे बालकों को ही क्यों देखते हैं? Verse 17. 17वां वचन, Don't think little means the a child who is born. ऐसा मत सोचो कि छोटा मतलब कि जो नया पैदा होता है जो बच्चा, वह नहीं। People, the worldly people they teach like this. संसार के लोग इस तरह से सिखाते Who हैं, have not received or talked with to Holy Spirit. जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है या कभी पवित्र आत्मा से बात नहीं की है, Those people teach वे लोग सिखाते wrong teaching. हैं झूठी शिक्षा। They teach वे सिखाते हैं when there is a baby about to come, बालक जब पैदा होने वाला होता है angel they watch children. तो स्वर्गदूत बच्चों को देखते हैं। Everywhere where there is a delivery, angel they come down from heaven. जहाँ कहीं भी प्रसूति होने वाली होती है वहाँ पर स्वर्गदूत स्वर्ग से आ जाते हैं नीचे। And they love to see newborn, new babies. और नए पैदा हुए बच्चों को देखना उनको अच्छा लगता है। And so little children smile. और यह छोटे बच्चे स्माइल मुस्कुराते हैं। And when the mother father say, why this child is smiling? और माता पिता कहते हैं कि यह बच्चा क्यों ऐसे मुस्कुरा रहा है। And they talk one to another and say, और वे एक दूसरे से कहते हैं, angels. स्वर्गदूत है यहाँ। Child is watching angels. बच्चा स्वर्गदूत को देख रहा है, And so this baby is smiling. इसीलिए यह बच्चा हंस रहा है। But the baby doesn't know why it is smiling and why I am crying. लेकिन बच्चे को तो पता भी नहीं होता कि वह क्यों रो रहा है या क्यों हंस रहा है। Here verse 10 says, यहाँ पर 10वां वचन कहता है, take heed that you despise not one of this little one, for I say unto you, ध्यान रखो कि तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ that their angels, this little one's angel, always behold the face of your Father who is in heaven. कि स्वर्ग में यह छोटे बालकों के दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। So don't lead him to sin. तो उससे पाप मत करवाना। Don't disturb them. उन्हें खलबली मत करना। Don't try them to cause that they cause to go and sin. उनको ऐसे परेशान ना करो कि वे जाकर पाप कर दे। And if they sin, और यदि वे पाप करें, and if they go against God, और यदि वे परमेश्वर के विरोध में जाए and start speaking against God, और परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू करे, the angel will be upset. तो They will be upset. स्वर्गदूत में गड़बड़ हो जाएगी। And they will be angry with the one who has caused them to sin. और जिसने उनको ठोकर खिलाई है उनके ऊपर स्वर्गदूतों को गुस्सा आएगा। And the angel who watch or they meet the Father, और स्वर्गदूत जो पिता से मिलते हैं या पिता का मुंह देखते हैं, they are going to go there. They are going to condemn and they are going to ask for judgment. वे स्वर्गदूत उन लोगों पर दोष लगाएंगे और न्याय मांगेंगे। So take heed, Lord said. इसीलिए प्रभु ने कहा कि ध्यान रखो। For the little one are been under care of angels. क्योंकि छोटे जो है उनको स्वर्गदूतों के हवाले किया गया है। Why these little children are hand over or are being kept under
angels watch? या छोटे बालकों को स्वर्गदूतों की निगरानी में क्यों रखा जाता है? For they are humble people. क्योंकि वे नम्र लोग हैं। 1 Peter 5:6 says, पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन कहता Lord है, every time use those who are humble. प्रभु ने हर बार उन लोगों का उपयोग किया जो नम्र है। Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that God may exalt you in due time. इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर ऊंचा उठाए। So due time come and He use you mightily. कि उचित समय आ जाए और वह आपको सामर्थ्य के साथ उपयोग करे। When? कब? If you humble yourself. यदि आप अपने आप को नम्र करो तो। Ephesians 3:8 says, एफएसी की पत्री 3 अध्याय 8वां वचन Paul कहता says, है, I'm the least among all the Christian people. पौलुस कहते हैं कि सारे मसीही लोगों में मैं सबसे छोटा हूँ। And He has entrusted me and given this charge to preach gospel. और उसने मुझ पर अनुग्रह किया और यह सुसमाचार मेरे हाथों में दिया अन्य जातियों को सुनाने के लिए। So why Paul was chosen? तो पौलुस को क्यों पसंद किया गया? Because he thought that I'm the least one. क्योंकि पौलुस ने सोचा कि मैं सबसे छोटा हूँ। Verse 8, 8वां वचन, and to me who am least among the least of all saints. मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। So Paul was the little child in that whole kingdom of heaven. तो स्वर्ग के वह पूरे राज्य में पौलुस सबसे छोटे थे। 1 Corinthians 15:9. पहले कुरिन्थी की पत्री 15वां अध्याय 9वां वचन, Again to this current people he said, I am the least of the apostles. फिर से यह करंथ के लोगों को पौलुस ने कहा कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। 2 Corinthians 12:11. दूसरे कोरिन्थी का पत्र 12वां अध्याय 11वां वचन, Here he said, I am nothing. यहाँ पर पौलुस ने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ। Among the chief apostle I am nothing. कि मुख्य प्रेरित जो है उन सब में तो मैं कुछ भी नहीं। But he was used for God's glory. लेकिन परमेश्वर के महिमा के लिए उसका उपयोग किया And he गया was given the greatest revelation. और उसे बहुत ही बड़े बड़े ज्ञान की बातें दी गई, प्रकाश दिया गया। So angels are with those who are little one. तो जो छोटे होते हैं उनके साथ स्वर्गदूत रहते हैं। Not in age, उम्र में छोटे not नहीं, in size, और अपने शारीरिक देखाव में, शारीरिक तौर पर कद में जो छोटे हैं वे नहीं, but those who are humble in spirit. लेकिन जो आत्मा में नम्र है, मन में छोटे हैं वे। For they don't use their power, authority to fight against the people. क्योंकि वे अपना अधिकार या अपनी ताकत लोगों के साथ लड़ने के लिए उपयोग नहीं करते। But angels are there to minister those little ones. ऐसे नम्र लोगों पे चलाने के लिए, सेवा करने के लिए स्वर्गदूत होते हैं। So why angels are at their service? Because they are feeling we are nothing and we don't love to fight. क्या और स्वर्गदूत उनकी सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं, महसूस करते हैं कि हम कुछ भी नहीं है और हम लड़ नहीं सकते। An angel take care of them. और स्वर्गदूत उनकी संभाल रखते हैं। So we should humble ourselves and be like little. तो हमें अपने आप को नम्र करना है और छोटा बनना है And never exalt ourselves. और अपने आप को कभी ऊंचा नहीं उठाना है। Amen. आमेन। God give you understanding. God give you grace. परमेश्वर आपको समझदारी दे और अनुग्रह दे। Amen. Let's close our eyes. आमेन। आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His valuable teachings. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके इस कीमती शिक्षण के लिए, More He give us grace to understand. और वह हमें अधिक अनुग्रह दे समझने के लिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all Jesus' wise wisdom. यीशु के सारे ज्ञान के लिए और ज्ञानी वचनों के लिए आपका हम धन्यवाद करते We हैं। thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते You हैं। talked to your disciple that question, even it was arose in us. आपने आपके चेलों के साथ बात की, वैसा सवाल हमारे बीच में भी खड़ा होता है। Who is greatest? Who will be greatest, or who is greatest in your kingdom? कि आपके राज्य में सबसे बड़ा कौन है या सबसे बड़ा कौन होगा? And you taught us. Thank you. और आपने हमें जवाब दिया, सिखाया, आपका धन्यवाद। Let your truth
abide in each heart. आपका यह सत्य हर एक हृदय में जुड़ जाए। Give us grace to understand more हमें अनुग्रह दो ज्यादा समझने के लिए, and help us, Lord. और प्रभु हमारी सहाय करो। Bless all who are watching, join with us. जो देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको And आशीष दो। who are agreeing with this teaching, bless them. इस शिक्षा के साथ जो सहमत होते हैं उनको आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom आपका come. राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our और debts, हमारे अपराधों को माफ as we करो, forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ And lead किया, us not into और temptation, हमें परीक्षा में न ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है, Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Let's say amen. आइए आमीन कहें। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you. धन्यवाद। Praise God. Share it. परमेश्वर का महिमा हो, इससे शेयर करते जाओ। आमीन। आमीन। Praise God.